ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ BTHE ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਲਾਜ਼ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਕਿ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਹੈ, ਵਰਕ ਹੈ, ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ, ਐਂਟਰੋਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, a process in which the volume of the given mass of the gas remains constant before and after heating is known as isochloric or constant volume process। ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਨਰ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਚਾਰਟ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਊਗਾ V1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ V2 ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਹੀਟਿੰਗ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਮਾਸ m ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਲ ਰਾਈਜ਼। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ m ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਗੈਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਐਜ਼ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਗੈਸ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਰਕ ਡਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਗੈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਗੈਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋਜ਼ PV ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਾਈ ਅ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਾਰਟ ਪਲਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ
कि जो वॉल्यूम है साडा कॉन्सटेंट आ और कॉन्सटेंट वॉल्यूम नूं असीं एक वर्टिकल लाइन दे नाल इत्थे रिप्रजेंट कीता होया। नैक्सट पॉइंट च गल कर रहा वो कहता द प्रोसैस फ्रॉम 1 to 2 रिप्रजेंट्स द स्टेट ऑफ द गैस बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग एंड एरिया ऑफ द कर्व 1 2 ऑन द वॉल्यूम एक्सिस इज़ 0। कि जिवें असीं देखिया कि इस जगह ते जो हुण चेंज इन वॉल्यूम है वो साडा एक वर्टिकल लाइन आ जिहदे करके एरिया अंडर द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस एक्स एक्सिस दे उत्ते वो साडा 0 होएगा, जो रिप्रजेंट कर रहा कि वर्क डन विल बी 0। नैक्सट असीं गल करते हैं जी कॉन्सटेंट वॉल्यूम प्रोसैस के अंदर जो साडे कोल कुछ कैलकुलेशनस होणियां ने वो साड़ियाँ किस तरीके दे नाल होणगियां। सब तो पहला असीं गल करांगे वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसैस 1 to 2 कि 1 to 2 जो प्रोसैस साडी चल रही है तो उस दौरान साडा जो वर्क डन होगा वो साडा की होगा। जिवें कि असीं जाणदे ही असीं पहलां भी पढ़िया होया कि जो भी थर्मोडायनमिक प्रोसैस के अंदर वर्क डन हुंदा वो इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व दे इक्वल हुंदा। सो एरिया ऑफ द कर्व जो है इस जगह ते असीं लिया है प्रैशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो जदों उसकी असी इंटीग्रेशन कर देवांगे तो सानू पूरे प्रोसैस का वर्क डन पता लग जूगा। इंटीग्रेशन की असी प्रोसैस 1 to 2। सो इस जगह पर असी आ गया साडा W इज इक्वल्स टू 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू DV। तो इसकी जो 1 to 2 असी रेंज लई है लिमिट्स लईयां ने ये कादियां ने हुण डेरीवेटिव इत्थे काहदा है वॉल्यूम का। सो इस जगह पर हुण अपनी जो लिमिट्स बन गई वो बन गई V1 to V2। सो नैक्सट इन्हां दी इंटीग्रेशन करांगे तो इंटीग्रेशन P साडा कॉन्सटेंट है एज इट इज़ रह जाएगा। वॉल्यूम दे विच जो चेंज आएगा हुण इस जगह ते जो साडियां लिमिट्स आ गईयां V1/V2 आ गईयां और उस दियां लिमिट्स जो पुट कीतियां P कॉन्सटेंट सीगा V2 माइनस V1। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ पता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो साडा 0 है। सो इस कंप्लीट वैल्यू की V2 माइनस V1 की वैल्यू साड़ी 0 आ गई। तो किसी भी चीज़ को जो असी 0 नाल मल्टीप्लाई करिए तो वह कंप्लीट आंसर साढ़े को 0 आ जाता। तो इतों असी रिप्रजेंट कर सकते हैं कि वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसैस 1 to 2 इज़ इक्वल्स टू 0। नैक्सट असी गल करते हैं हीट ट्रांसफर कि इसे ही प्रोसैस के दौरान कितनी हीट ट्रांसफर होगी जो 1 to 2 प्रोसैस कंप्लीट होगी। सो हीट ट्रांसफर इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 m इंटू CV इंटू dt चेंज इन टैंपरेचर। तो इत्थे जो टर्म्स लईयां ने मास ऑफ द गैस इंटू CV है स्पैसिफिक हीट एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम इंटू चेंज इन टैंपरेचर। जो यदि असी इंटीग्रेशन करांगे फ्रॉम T1 to T2 तो इसका जो चेंज आएगा m इंटू CV ये साड़ियाँ कॉन्सटेंट टर्म्स ने dt डेल्टा T की असी इंटीग्रेशन की तो चेंज होकर साढ़े को आ गया T2 माइनस T1। तो कंप्लीट जो चेंज साढ़े को आया वो आ गया m इंटू CV T2 माइनस T1। नैक्सट आ जाता साढ़े को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कि वो इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा। सो इंटरनल एनर्जी नू हमेशा असी डिनोट करते हैं डेल्टा U दे नाल। तो इत्थे इस दे अंदर चेंज कैलकुलेट करना फ्रॉम प्रोसैस 1 to 2 डेल्टा U 1 to 2 इज़ इक्वल्स टू अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 क्योंकि प्रोसैस साडी 1 to 2 जा रही है। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होंदा उन्होंने असी नोट करते हैं m इंटू CV इंटू डेल्टा T। सो इसकी अगेन असी T1 to T2 लिमिट्स पुट करतियाँ उसकी फर्दर अगे इंटीग्रेशन की तो m इंटू CV T2 माइनस T1। सो इस जगह पर असी देखिया कि जो साड़ी इत्थे Q1 की वैल्यू आई सी कि हीट ट्रांसफर वो भी साढ़े को m इंटू CV चेंज इन टैंपरेचर और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू m इंटू CV T2 माइनस T1 ये दोनों सेम आ रही है। तो इनू असी जस्टिफाई करने के लिए थर्मोडायनमिक्स के फर्स्ट लॉ तो भी देखते हैं कि वो अकॉर्डिंगली साढ़े को आंसर किमें आऊगा। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 कि जिहड़ी अपने को हीट ट्रांसफर होंदी है वो हमेशा ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होंदी है। और इस प्रोसैस के वास्ते साडा जो वर्क डन है वो साडा असी 0 कैलकुलेट किया ऊपर असी हुण पिछे करके हटे हैं। देयरफॉर साडे कोल जो हीट चेंज आऊगा वो साडी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ जाऊगा। सो इत्थों भी असी प्रूव कर लिया और इत्थों भी असी देखिया सी कि एज इट इज़ साडा सेम आ रहा सी। सो हीट ट्रांसफर्ड
इज़ इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नैक्सट असीं गल करते हैं चेंज इन एंथैल्पी के बारे कि एंथैल्पी के अंदर चेंज की आऊगा, और एंथैल्पी नूं असीं हमेशा डिनोट करते हैं डेल्टा एच के नाल। डेल्टा एच इज़ इक्वल्स टू मास इंटू सी पी एंड प्रोडक्ट ऑफ T2 माइनस T1 कि इसनूं कंप्लीट टर्म नूं असीं काउंट करते हैं चेंज इन एंथैल्पी, जिथे CP है साडी स्पैसिफिक हीट एट कॉन्सटेंट प्रैशर। नैक्सट है जी इसे ही प्रोसैस के अंदर चेंज इन एंट्रोपी कि एंट्रोपी दे विच कितना चेंज आऊगा। जिवें कि असीं जाणदे हां कि एंट्रोपी की है कि जदों सिस्टम के अंदर कुछ चेंज आउंदा एब्सोलूट टैंपरेचर के रिस्पैक्टिव, जदों उत्थे असीं कुछ क्यू अमाउंट की हीट सप्लाई करते हैं तो उहदे करके जिन्ना चेंज आऊगा उन्होंने असीं एंट्रोपी काउंट करते हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना होएगा, तो इसे चीज़ को पहला लिख रहा वो कहना वैन m kg ऑफ मास of the gas is heated at a constant volume V, then the entropy increases from S1 to S2 कि जी एंट्रोपी है वो S1 to S2 इनक्रीज कर जाएगी जदों टैंपरेचर साडा T1 to T2 इनक्रीज करूगा। सो क्यू की वैल्यू जिवें कि असीं पिछे कैलकुलेट की सी क्यू इज इक्वल्स टू M इंटू CV इंटू T2 माइनस T1, ये असीं पिछे कैलकुलेट करके हटे हैं। इसे ही इक्वेशन नूं हुण असीं इंटीग्रेट कर देना, सॉरी डिफरेंशिएशन कर देनी है पहला इन्हां दी। तो इन्हों डिफरेंशिएट किया टू फाइंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू कि जदों असीं स्मॉल चेंज कढ़ना कि छोटी जी अमाउंट की असीं हीट जदों सप्लाई की तो उस दौरान इसका जो फॉर्मूला है हीट चेंज का वो की होगा। तो डी क्यू इज़ इक्वल्स टू M इंटू CV डेल्टा T चेंज इन टैंपरेचर। इनू पूरी इक्वेशन नूं असीं T दे नाल फरदर अगे डिवाइड कर देवांगे, डिवाइडिंग बाय T ऑन बोथ साइड्स, तो साडे कोल फॉर्मूला बन गया डी क्यू अपॉन T इज़ इक्वल्स टू MCV इंटू DT बाय T। बट इस जगह पे सानू पता है कि जी कंप्लीट टर्म है डी क्यू बाय T ये इक्वल टू है DS ते जिहड़ा कि है साडा एंट्रोपी। तो इस कंप्लीट इक्वेशन के विच इस सारी नूं असीं लै सकते हैं DS के बराबर। तो इसे ही इक्वेशन नूं असीं अगे इक्वल टू DS के इक्वल पुट किया, DS इज़ इक्वल्स टू MCV इंटू DT बाय T। सो ये सी कि जदों किसी भी सिस्टम के अंदर असीं कुछ छोटी जी अमाउंट की हीट सप्लाई की तो उस दे अंदर जो छोटा जा चेंज आया, चेंज इन एंट्रोपी आया, वो साडे कोल कुछ इस तरीके दे नाल दिता होगा DS इज़ इक्वल्स टू MCV इंटू DT बाय T। हुण पूरे सिस्टम के अंदर कितना टोटल चेंज आऊगा तो वो कैलकुलेट करने के लिए असीं की करते हैं इस चीज़ को फरदर इंटीग्रेट कर देंगे हैं। तो इंटीग्रेट करांगे फ्रॉम 1 to 2 कि S1 to S2 जो एंट्रोपी का चेंज आया तो उस टाइम असी कंप्लीट ये जो चेंज करना इतने देखते हैं कि डेरीवेटिव ऑफ T है तो टैंपरेचर लिमिट्स दियाँ असी पुट करांगे। तो टैंपरेचर दी लिमिट्स पुट कीतियां फ्रॉम T1 to T2। तो M इंटू CV साडा कॉन्सटेंट सी एज इट इज़ आ गया। इतने देखते हैं कि 1 बाय T इंटू DT है तो 1 बाय T की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ T, लिमिट्स पुट कर दियाँ T1 to T2। इसे ही फरदर अगे सॉल्व आउट करांगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है साडी T2, लोअर है साडी T1, तो लॉग ऑफ T2 माइनस लॉग ऑफ T1 बाकी एज इट इज़। नैक्सट आ जाता साढ़े को S2 माइनस S1 इज़ इक्वल्स टू M इंटू CV लॉग ऑफ E T2 बाय T1। सानू पता है कि जदों लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B होवे तो वो फरदर लॉग ऑफ A बाय B बन जाता। तो सो फाइनल साढ़े को जो चेंज इन एंट्रोपी आया वो साढ़े को ये चीज़ आ गई M इंटू CV लॉग ऑफ E T2 बाय T1। नैक्सट है साढ़े को रिलेशनशिप बिटवीन PVT if the gas changes its state from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 कि जदों अपने कोल ये प्रोसैस दे विच कुछ चेंजिस आउणगे, प्रोसैस 1 to 2 चेंज होगी तो उस दौरान साढ़े कोल PV ते T दे विच की रिलेशन होगा। असीं जाणदे हां सारे कि जिहड़ी साडी गैस इक्वेशन है PV इज़ इक्वल्स टू MRT। उस दे अकॉर्डिंगली जदों कोई प्रोसैस फॉलो होंदी है 1 to 2 तो उन्होंने असीं इस तरीके दे नाल डिनोट करते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। इस जगह ते असीं जानते हैं कि जो वॉल्यूम सी वो साडी कॉन्सटेंट सी V1 इज़ इक्वल्स टू V2 है। तो इस जगह ते V1 ते V2 आपस दे विच कैंसल आउट हो जाएंगे। जो बाकी साढ़े कोल बचूगा P1 बाय T1 इज़ इक्वल्स टू P2 बाय T2। ये साडा आ गया फाइनल आंसर।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।